ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एसो पञ्च પધારેલા સર્વે મહેમાનો, મોક્ષુ ભાઈ બહેનો દરેકનું શ્રીમદ રાજચંદ્ર આધ્યાત્મિક સાધના કેન્દ્ર કોબા તરફથી હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના જન્મદિવસ નિમિત્તે અત્રે ઉપસ્થિત સર્વે મુમુક્ષુગણ વતી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપી ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ. સ્વ પર કલ્યાણની ટેક લઈને બેઠેલા આપ શ્રી આપના નિર્ધારિત લક્ષ્યને જલ્દી જલ્દી સત્વરે હાંસિલ કરો એવી ફરી ફરી અમ સર્વે મોક્ષો આજના મંગલ દિવસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. થોડું અમારી બાળકોની ભાષામાં કહીએ, મેની મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે. મે ધ ચોઇસેસ્ટ બ્લેસિંગ્સ ઓફ ઓલમાઇટી શાવર ઓન યુ. ઓમ. હવે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીશું. સર્વથી પ્રથમ પધારેલા આચાર્ય પરમ પૂજ્ય શ્રી પદ્મસાગર મહારાજ શ્રી આશીર્વચન પાઠવશે. આચાર્ય શ્રી પદ્મસાગર મહારાજ શ્રીથી જૈન સંપ્રદાય, જૈન સમાજમાં કોઈ વ્યક્તિ એવી નહીં હોય કે જે પૂજ્યશ્રીને ઓળખતી ન હોય. આપશ્રીને રાષ્ટ્રસંતનું બિરુદ પ્રાપ્ત થયેલ છે એવા આચાર્ય શ્રી પદ્મસાગર મહારાજ શ્રી આપનું અમે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. ભારતના રાષ્ટ્રપતિ અને વડાપ્રધાન પણ જેને મેળવવામાં ગૌરવ અનુભવે છે એવા પૂજ્ય આચાર્ય શ્રીના પવિત્ર જીવનથી, ધર્મ અને સમાજ પ્રત્યેની અદ્ભુત નિષ્ઠાથી હજારો જીવોએ પોતાનું જીવન દિવ્ય બનાવ્યું છે. પૂજ્ય શ્રી પ્રત્યે તથા અમારી સંસ્થા પ્રત્યે પણ આપશ્રીને ખૂબ જ અહોભાવ છે, પ્રેમભાવ છે. ને અમારી ફક્ત એક નાની વિનંતીને માન આપીને પણ આ મહોત્સવમાં ભાગ લેવા આપશ્રી પધાર્યા તે બદલ અમે ખરેખર આપશ્રીના ઘણા જ આભારી છીએ. હવે આપશ્રીને વિનંતી કરીશું કે અમારે આશીર્વચન આ શુભ નિમિત્તે આપશો. महावीर स्वामी भगवान की जय. 2400 तीर्थंकर भगवान की जय. शासन देव की जय. मारे तो 1.5 મિનિટ લેવી છે કે આ આપણી બંને સંસ્થાઓ જે છે એ ટ્વિન્સ 1981-82 માં પૂજ્ય કૈલાસ સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ અહીંયા આવ્યા હતા અને તે વખતે આપણે કઈ બીજી વ્યવસ્થા નહોતી અને અહીંયા પણ 3 કે 4 રૂમ હતા. તે વખતે તેઓ 3-4 એક દિવસ રહેલા. મતલબ ગોકુળભાઈ પણ તે વખતે હતા ને કે એમને યોગસાર કે કંઈક ગ્રંથ ભેટો આપ્યો હતો. પ્રકાશનો પ્રકાશ આપ્યો હતો એટલે બહુ રાહી રહ્યા હતા. ચોમાસાનો પ્રારંભ હતો, બધો જરા અગવડ સગવડ હતી પણ 3-4 લોકો બધા ગોઠવાઈ ગયા. બાકીના લોકો ઝાડની નીચે બધા બેસતા હતા. અને ત્યાર પછી પણ આપણી અમુક જે મકાન છે એના શિલાન્યાસ વિધિ પણ આપણે અહીંયા વિધિ થઈ હતી. એટલે દિવસે દિવસે બંને સંસ્થાઓ પ્રત્યેનો પ્રેમ વધે
અને ભગવાન મહાવીરનો સંદેશ આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારીએ અને બીજાઓને પણ એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મળે અને સૌ જીવનમાં ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષની અવિરતપણે સિદ્ધિ કરે એવી પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી ઉપસ્થિત સર્વ ત્યાગી ધર્માત્માઓને વંદન કરી અને પૂજ્ય મારા આચાર્યશ્રીને વિનંતી કરું છું કે એમનો વક્તવ્ય આપશે. उपस्थित महानुभावों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक महान संत पुरुष के जन्म दिवस पर मुझे आने का मौका मिला. कर्म संयोग से जन्म तो मिल जाता है, पर जीवन जी करके उसकी पूर्णता को प्राप्त करना बहुत बुद्धिमानी का काम है. कर्म संयोग से जन्म अपने हाथ में नहीं था, कहाँ जन्मूंगा कब जन्मूंगा, पर जीवन जीना और कैसे मरना ये तो अपने हाथ में. प्रभु से अपनी रोज यही प्रार्थना होती है, क्षमा ही मरण. भगवान तेरी कृपा से जीवन तो मिला, परंतु समाधि में ऐसा मैं मृत्यु प्राप्त करूं कि फिर से जन्म न लेना. और ये संस्था के अंदर यही सिखाया जा रहा है कि जीवन कैसे जीना और अंतिम समय समाधि कैसे प्राप्त करना. आज अपना जीवन बहुत बाहर जा चुका है. लोग भौतिक कामना से पीड़ित हैं. अर्थकाम की लालसा कैसे प्राप्त करूं, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा लेकर के हम जीवन जी रहे हैं. भार मुक्त जीवन नहीं, विचारों के भार से हम पीड़ित हैं और विचारों का ये कलुषित वातावरण आत्मा के परिणाम को दूषित करता है और उसे शुद्ध करने का, स्वयं की पवित्रता और पूर्णता को प्राप्त करने का एक ही राजमार्ग है, वो आध्यात्मिक मार्ग. जहाँ व्यक्ति परम शांति का अनुभव प्राप्त करता है, अनेक आत्माओं की कल्याण की कामना जहाँ पर की जाती है, किस तरह से मैं स्वयं के अपने आत्मा को अन्य आत्माओं के कल्याण के लिए जहाँ पर कामना होती है, मात्र स्वयं के लिए नहीं सर्व के कल्याण के लिए आध्यात्मिक साधना है. विश्व के अंदर एकमात्र जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सांप्रदायिक वातावरण से मुक्त है. ये सेक्युलर है. यहाँ परमात्मा के स्मरण के अंदर भी आप देखेंगे महामंत्र 9 का पूर्ण सेक्युलर. जिस आत्मा में ये गुण विद्यमान है मैं उन्हें वंदन करता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं. समस्त साधु संतों को वंदन करता हूँ. जहाँ साधुता है उन आत्माओं को मैं वंदन करता हूँ. पांचों पद ऐसे हैं जो निरपेक्ष हैं. ये विशेषता एक जैन दर्शन की है, जहाँ सर्व आत्माओं का समावेश किया गया है. यहाँ कोई संकीर्णता नहीं, विचार की ऐसी उदारता है, परंतु वर्तमान के अंदर इसे हम विश्व धर्म नहीं बना पाए. महावीर का ये परम संदेश जगत तक पहुँचाने का ये कार्य, उसमें हम बहुत पीछे हैं. प्रयास चालू है और आप जैसे साधक पुरुषों के द्वारा मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में परमात्मा के संदेश को हर घर तक पहुँचाने का प्रयास करें. हर परिवार, हर व्यक्ति तक परमात्मा का संदेश पहुँचे. सारा वातावरण आज दूषित है, परंतु आध्यात्मिक जगत के अंदर व्यक्ति अशांति में भी शांति का अनुभव प्राप्त करता है और स्वयं के खोज के अंदर वो व्यक्ति संसार से शून्य बनता है. और खोज के अंदर जहां तक स्वयं को खोया नहीं जाएगा वहां तक खोज कभी पूरी होगी नहीं. यहाँ तो स्वयं को खोना है.
बाहर से प्राप्त करने का हम बहुत प्रयास करते हैं, परंतु अंदर से प्राप्त करने का हमारा प्रयास नहीं जैसा है। और यहाँ इस संस्था में तो स्वयं की खोज के अंदर डूबे हुए व्यक्तियों को स्वयं को प्राप्त करने का जो मार्गदर्शन दिया जाता है बहुत ही सुंदर। ये संत पुरुष स्वामी आत्मानंद जी महाराज हमारे परम कल्याण मित्र हैं। हमारे संस्था के अंदर भी इनका पूर्ण सहयोग रहा है। जब जब जरूरत पड़ी बिना संकोच अपना घर समझ करके इन्होंने अपनी उदारता बतलाई। और मेरी भी ये भावना रही कि जब जब यहाँ कोई कार्य आए, प्रसंग आए और मेरी उपस्थिति रहे तो मैं आए बिना कभी रहता नहीं। इस संस्था के प्रति भी मेरी वही रुचि है, वही भावना है जो हमारे संस्था के लिए है। वो ज्ञान का क्षेत्र है, ये साधना का क्षेत्र है। और ज्ञान और साधना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बिना ज्ञान के साधना शून्य है और साधना शून्य से वो ज्ञान भी कभी मोक्ष का कारण नहीं बनता। परमात्मा ने कहा कि विचारों को क्रियान्वित रूप दिया जाए। जानकारी कभी मोक्ष नहीं बनता, मोक्ष का कारण नहीं होता। आचरण ये मोक्ष का कारण है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। जानकारी के अनुसार हमारा वर्तन भी होना चाहिए। परमात्मा के विचारों को अपने आचार से ही प्रकट करना है। और विचार मूर्छित रहते हैं और वो मूर्छित विचार कभी आपके आत्मा को जागृत नहीं कर पाते। तो यहाँ तो उन विचारों को सक्रिय बनाने का भी प्रयास चालू है। साधना के द्वारा विचार में परिवर्तन लाया जाता है। क्रियात्मक योग को विशेष महत्व दिया गया। मैं क्या करता हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, मैं अपने भविष्य के लिए क्या करूं। वर्तमान भविष्य को निर्माण करता है। वर्तमान से आपका भविष्य निर्माण होता है। और वर्तमान यदि सुंदर है तो भविष्य अपने आप सुंदर बनने वाला है। महावीर परमात्मा की सारी साधना संसार से मुक्त होने की साधना है, वासनाओं से मुक्त होने की साधना है। और उसका मार्गदर्शन इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। यहाँ आने वाला व्यक्ति अपने आप में कुछ पा करके ही जाता है। यहाँ खोने का कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पाना ही पाना है। आध्यात्मिक पुरुष श्रीमद् राजचंद्र जी ने जो अपने अनुभव के द्वारा, स्वानुभव के द्वारा इस जगत को जो अमृत पान कराया, लोग पा करके तृप्त बनते हैं। परमात्मा महावीर की वाणी को लोक भाषा में उन्होंने रखा ताकि लोग कदाचित संस्कृत या प्राकृत का ज्ञान जो न रखते हों, उन आत्माओं को भी परमात्मा की वाणी से वंचित न रखा जाए। इसीलिए लोक भाषा में, काव्य के रूप में, संगीत के रूप में उन्होंने परमात्मा की वाणी को आपके समक्ष रखा, ताकि अच्छी तरह से रसपान कर सकें और आध्यात्मिक रस का पान करके आत्मा तृप्त बने। संसार के भौतिक वातावरण से मैं मुक्त बनूं, और यही यहाँ शिक्षा दी जाती है। आपका जीवन ही देखिए, डॉक्टर थे, कोई कमी नहीं थी। भौतिक जीवन के अंदर में अच्छी सफलता इन्होंने प्राप्त कर ली। परिवार संपन्न था, हर तरह से कुछ पूर्व का पुण्य लेकर के आए थे, सारी अनुकूलता इनको मिली। और फिर भी जीवन का कैसा परिवर्तन हुआ। प्रवचन के द्वारा, परमात्मा के धर्म प्रवचन के द्वारा परिचय करते करते कितना बड़ा परिवर्तन हुआ कि संसार से निवृत्त हो गए, अंतर मन से निवृत्त हो गए और अपने कार्य में लग गए। अपनी साधना के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया, जीवन की सफलता को प्राप्त किया। जो चाहिए उसके लिए इन्होंने पूर्ण प्रयास किया। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति तो शुभकामना देना मेरा नैतिक कर्तव्य है। और मॉरल ड्यूटी कि मैं अपनी शुभकामना दूं और इनके पुण्य में भागीदार बनूं। शतायु बने, अनेक आत्माओं को धर्म से
परिचित बनाए, अनेक आत्माओं के जीवन का परिवर्तन करने वाले बने। क्योंकि महावीर की वाणी ये तो ऐसी वाणी है, अगर इसका भावपूर्वक श्रवण किया जाए तो मौलिक परिवर्तन आता है, अंतर से परिवर्तन आता है। और यहाँ बाहर के परिवर्तन का इतना मूल्य नहीं रखा जितना अंतर के परिवर्तन को मूल्य दिया गया है। आप कितना प्राप्त करेंगे? आज के लोगों के अंदर ये वासना में या कामना में कभी पूर्ण विराम तो आने वाला ही नहीं। इच्छा और तृष्णा, इसके अंदर पूर्ण विराम कभी आता ही नहीं। प्रभु ने कहा इच्छा आकाश समान, ये आकाश के समान है, इसका कोई अंत नहीं। और ज्यादातर लोगों को देखा गया अप्राप्ति की वेदना में भी आए अपना जीवन पूर्ण कर रहे नहीं है। एक बड़ी भारी वेदना है, मानसिक वेदना है, अप्राप्ति की वेदना नहीं, और उसके लिए सतत प्रयास करते चलेगा। आज का इंसान चलता नहीं, घोड़ों की तरह दौड़ता है। मैं बम्बई था तो महालक्ष्मी की रेस से जा रहा था, तो कुछ घोड़ों को दौड़ाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। एक घोड़े ने मेरे कान में कहा कि महाराज देखिए, शनि या रविवार को जब मैं दौड़ता हूँ, हम लोग जब दौड़ते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, तो लाखों व्यक्ति मुझे देखने आते हैं। पर महाराज क्या बताऊं, ये इंसान सुबह से शाम तक रोज दौड़ता है, एक घोड़ा भी काम कर नहीं ये संसार की दौड़ तो चलती ही रहेगी, और इसमें सिवाय श्रम के विश्राम मिलने वाला नहीं। साधना चित्त का विश्राम देता है, चित्त की शांति प्रदान करता है, मानसिक वेदना को शांत करता है, और जीवन जीने की एक अपूर्व कला आपके अंदर में प्रकट करता है। सारा ही जीवन साधना से सुगंधमय बनता है। यदि साधना सक्रिय हो, आपका आचरण सुगंधमय बनता है, अन्य आत्माओं को आकर्षित करने वाला बनता है। कहाँ तक उपार्जन करें? परमात्मा ने तो कहा संसार के परिभ्रमण का मूल कारण तस्याम हेतु परिग्रह। ये परिग्रह की वासना संसार का परिभ्रमण करा करती है। जड़ और चैतन्य का जहां तक भेद विज्ञान आपके ध्यान में नहीं आएगा, वहां तक ये चैतन्य की दुर्दशा तो बनी है। क्योंकि जड़ को प्राप्त करने के लिए चैतन्य के गुणों की हम हत्या करें, आत्मगुणों की हत्या करें, वो विचार दूषित बने, परिणाम कुछ भी मिलने वाला नहीं। ये जो कुछ मिला है पुण्य बल से मिला है, और जैन दर्शन में पुण्य का इतना बड़ा मूल्य नहीं रखा है। ये सहज प्रकृति का एक सहज गुण, आप शुभ कार्य करते हैं, पुण्य का अनुबंध होगा। प्राकृतिक नियम, इसमें कोई फेरफार नहीं, पर पुण्य का मुझे सदुपयोग करना है। साधना के द्वारा, उदारता के द्वारा, अनुकंपा के द्वारा, सम्यक दर्शन की मलिनता को दूर करने के लिए, सम्यक दर्शन परमात्मा के प्रति संपूर्ण श्रद्धा को प्रकट करने के लिए उसकी मलिनता निकल जानी है। आज तो वर्तमान में ऐसी दुर्दशा है हमारी साधना भी, जिसके अंदर हमारी साधना में भी संसार का प्रवेश है, संसार का आक्रमण है। हमारी साधना खंडित होती है, दूषित होती है। यहाँ तो परमात्मा ने कहा विशुद्ध आत्म भावना से आत्मा के लिए, आत्मा को पाने के लिए ही साधना करना। लक्ष्य तो वही होना चाहिए, परंतु उससे हम बहुत आगे निकल गए। मर्यादा का उल्लंघन करके सारी धर्म साधना भौतिक कामना से पीड़ी। कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, क्या मिलेगा? परमात्मा ने कर्म सिद्धांत ऐसा अपूर्व विज्ञान दिया है, अच्छी तरह से अगर समझ लिया जाए तो प्राप्ति की लालसा ही खत्म हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जात को ही प्राप्त करना है, जगत को नहीं। जगतपति ने जो कहा वही मुझे करना है, जगत कहता है वो मुझे नहीं करना। हमारे विचार में इतनी बड़ी क्रांति आ जाएगी, क्या करेंगे, कितना उपार्जन करेंगे और क्या देगा, कौन देगा? अंधविश्वास इस देश के अंदर हमारे धर्म को दूषित करने वाला सबसे भयंकर तत्व है अंधविश्वास, ब्लाइंड फैक्ट। देवी देवताओं के पीछे जीवन पर्यंत हम भटकते रहे, क्या मिले? परमात्मा ने सर्वप्रथम अपने विचारों से अंधविश्वास पर प्रहार किया।
जो मिलता है अपने कर्मानुसार। परंतु हर जगह पर चाहे बड़ी साधना हो, छोटी साधना हो, या कोई भी धार्मिक मंगल अनुष्ठान हो, हर जगह पर हमारी कामना तो रहती है। संसार से शून्य हमारी साधना नहीं, और यही कारण है कि साधना सफल नहीं होती, क्योंकि अंदर कामना है। वो एक प्रकार का व्यापार हुआ, बिजनेस हुआ। मैं आपको देता हूँ, आप मुझे कुछ दें, गिव एंड टेक। मैं देता हूँ प्रभु, तू भी मुझे कुछ दे। वहां तो निष्काम भावना से समर्पण की भूमिका पर प्रभु की प्रार्थना करनी है। भगवान मेरी कोई कामना नहीं। प्रार्थना में एक वस्तु का विचार करिए, प्रभु जो तूने पाया वो मुझे पाना है, जो तेरे पास है वो मुझे चाहिए, जो तूने छोड़ा वो मुझे नहीं चाहिए। अगर ये विचार प्रार्थना में आ जाए तो प्रार्थना फिर प्राण शून्य नहीं रहती, वो प्रार्थना सक्रिय बने। क्या देंगे? मैं बंबई था तो वहाँ गणेश चतुर्थी का बड़ा भारी महोत्सव चल रहा था। वहाँ की लौकिक मान्यता है। तो कोई व्यक्ति चला गया, नया नया बंबई में आया था, पास में कुछ था नहीं। देखा लाखों लोग जब उसकी मान्यता रखते हैं तो मैं भी कुछ जाऊं, कुछ मांगूं। पॉकेट खाली था, रहने का पता नहीं, खाने का पता नहीं। एकांत में गया और लोग देवता गणेश से प्रार्थना की एकांत में कि यहाँ आया हूँ, लोगों को तेरी भक्ति करते हुए देखा तो मेरी भी ये भावना हुई, अगर मेरी भावना तू सफल कर दे तो आने वाले वर्ष में इतनी शानदार तेरा मैं महोत्सव मनाऊं, पूरा बंबई देखता रह जाए। मेरी दो कामना है, एक तो यहाँ रहने के लिए फ्लैट मिल जाए, इस प्रकार से उपार्जन कर लूं, और एक घूमने फिरने के लिए एक गाड़ी आ जाए, मर्सिडीज आ जाए। ये ट्रेनों को देखता हूँ तो घबराता हूँ। गणेश जी ने भी बात सुनी और बड़ा गुस्सा आया, उठा के कान एक सूंड लगाया गाल पर कि बेवकूफ, तेरे में अक्ल नहीं? अगर मैं तुझे फ्लैट दे देता तो मैं इस तंबू में क्यों रहता? अगर मैं तुझे मर्सिडीज कार देता तो मैं चूहे पर सवारी क्यों करता? मेरी दशा तो देख। देवी देवता क्या दे? हम भी प्रार्थना से कुछ प्रभु से मांगने नहीं जाते, अपना जीवन समर्पण करने जाते। वो तो प्रकृति है, जो देना है वो देगी। अपनी क्यों ऐसी अंतर की कामना रखें? कितना उपार्जन करेंगे इसकी कोई सीमा तो है नहीं। आप चाहे हर जगह पर देखा, हर लोगों के अंदर बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो विशुद्ध आध्यात्मिक साधना में मग्न हो, मस्त बन जाए। आनंद गंज जी महाराज रास्ते में जा रहे थे भिक्षा के। गांव का जो ठाकर था, उनका एक भक्त था, परम भक्त था, चरणों में गिरा, वंदन किया और कहा कि प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, सेवक हूँ, कभी मुझे याद करते हैं? आनंद गंज जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कभी मैं अपने मालिक परमात्मा को भूलूं तब तू याद आए? उनकी मस्ती कैसी होगी, उनका आनंद कैसा होगा? उनके विचार आत्मा में केंद्रित थे, आत्म वर्तुल में। ऐसी दशा अपने को भी प्राप्त करनी है, जगत को भूल जाएं और मात्र परमात्मा ही अपने स्मरण में रहें, स्मृति में रहें। परमात्मा का ये भक्ति का अनुराग ऐसा हो कि अंतर हृदय से परमात्मा कभी जा ना पाए। तुलसीदास को जब काशी के पंडितों ने पूछा, अभिनंदन का प्रसंग था कि राम के ऊपर आपने बहुत सुंदर एक साहित्य का निर्माण किया, रामचरितमानस, हिंदी का एक अपूर्व साहित्य, और राम के प्रति आपकी अपार भक्ति देखकर मुझे बड़ा आनंद आता है। वहां के पंडितों ने कहा कि राम तो सर्वशक्तिमान, और ऐसे शक्तिमान आत्मा के आप उपासक हैं। उन्होंने कहा बात तुम गलत कर रहे हो, शक्तिमान तो मैं हूं, राम तो कायर है, कमजोर है। तो ये कैसे? क्योंकि तुम समझ नहीं पाए मेरे संकेत को। अरे मैंने अपने मन के पिंजरे में राम को बंद करके रखा है, प्रेम का ताला लगाकर, चाबी तो मेरे पास है। अंतर मन से राम कभी अब जा ही नहीं सकता। अरिहंत परमात्मा की भक्ति करते करते उस वीतरा की भक्ति में अपनी भी ये स्थिति आ जाए कि अंतर मन से अब कभी प्रभु अरिहंत जा ही नहीं सकते।
प्रेम और मैत्री का ताला लगाकर चाबी तो मैंने अपने पास रखा है, जाएंगे कहाँ? साधना ऐसी हो कि प्रभु के आगमन के बाद अंतर मन से वो जाएंगे। ऐसी स्थिति अपनी आनी चाहिए। ये बहुत योग्य पुरुष है, बहुत आत्मचिंतन और मंथन किया है। चिंतन और मंथन एक ऐसी चीज है जो तत्व का नवनीत देता है, मक्खन देता है, क्रीम। और एक बार तत्व का परिचय हो जाए फिर जगत का स्वाद उसके मुंह में लगता नहीं, वो अपूर्व स्वाद आता है। भक्ति का ऐसा नशा है जिसकी खुमारी कभी उतरती नहीं। तो ये महापुरुष के जन्म प्रसंग पर मैं तो अंतर से यही शुभकामना देता हूँ कि इनकी आत्मा तो निर्मल है, भद्रिक परिणामी है। जहाँ तक मेरा परिचय है, बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो अंतर हृदय से प्राणी मात्र के प्रति अपनी सद्भावना रखते हों, अनुकंपा रखते हों और अनेक व्यक्तियों को परमात्मा के परिचय में लाने वाले हैं। गांव गांव घूमें, इस उम्र में गांव गांव जाते हैं, कैंप लगाते हैं, शिविर लगाते हैं, आयोजन करते हैं। इनके पीछे इनका आशय क्या? कोई राजमहल बनाना है, कोई मौज शौक से रहना है? किसके लिए? कि चलो इस निमित्त से भी, अगर मेरे प्रयास से भी लोग अगर इस मार्ग में जुड़ते हों तो मैं अपना प्रयास चालू रखूं। इनकी साधना निष्क्रिय साधना नहीं, सक्रिय साधना है। अनेक लोगों को धर्म मार्ग में जोड़ने का प्रयास है ताकि भक्ति के मार्ग में आए और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति ही भगवान बन जाए। ये भक्ति में बड़ी प्रचंड शक्ति है। शक्ति का जागरण करना है, ये स्थान इसके लिए बना है। ये साधना का स्थान है। ये आपको विश्राम देता है, आपके चित्त में एक अपूर्व आनंद प्रकट करता है और जीवन जीने की कला आपको सिखाता है, कैसे जीना। मक्खन होता है, मंथन करते हैं तो मक्खन निकलता है। दही का मंथन करें तो जब मक्खन निकल जाए, आप कितना भी प्रयास करें वो छाछ के अंदर मक्खन डूबेगा नहीं। सम्यक दृष्टि आत्मा, परमात्मा के भक्ति में मस्त रहने वाली आत्मा संसार में कभी डूबती नहीं, तैरती है मक्खन की तरह। दर्पण की तरह से जीवन बन जाता है। आपने देखा घर के अंदर हर व्यक्ति दर्पण रखता है, आईना रखता है। दर्पण का एक स्वभाव होता है, वस्तु का स्वभाव उसका धर्म होता है। कोई भी आएगा, कोई भी जाएगा, जो उसके परिचय में आया, सामने आया, उसकी छाया उसमें जाती आया, ये पुद्गल है। परंतु आपका प्रतिबिंब दर्पण, हरेक का परिचय दर्पण करता है। पर जैसे आप सामने से दूर जाएं कि सम्यक दृष्टि आत्मा का मन ऐसा निर्मल होता है, परिचय सबका और संग्रह किसी का भी नहीं। साधना के अंदर उसकी परिपक्वता की निशानी है कि उसका मन दर्पण जैसा बनता है। परिचय सबका, स्वभाव है मन का, परंतु संग्रह किसी का नहीं। संग्रह वही अपने लिए अनर्थ का कारण बनता है। तो जीवन ऐसा बने कि प्रभु कृपा से भक्ति के द्वारा यदि कोई पुण्य की प्राप्ति हो जाए और सहज में मिल जाए तो परोपकार में मैं अर्पण करूं। इनका जीवन परोपकारी, हरेक परोपकार के कार्य में इनका सहयोग मिला। अपनी शक्ति के अनुसार इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी ऐसा परोपकार का कार्य किया, जीव दया का कार्य किया, अनुकंपा का भी कार्य किया। जब जब जरूरत पड़ी तब तक इनका सहयोग उसमें मिला है, रहा है, ऐसा मैंने सुना है। तो अपने पास भी अगर दो पैसा आ जाए तो अगर शुभ कार्य में, शुभ प्रवृत्ति में जाता हो, शुद्ध भावना से प्रभु आज्ञा मानकर कि प्रभु ने ये कहा है कि पुण्य के द्वारा यदि कुछ मिला है तो उसका सदुपयोग परोपकार में करना है, ऐसे कार्य में देने की मंगल भावना रखें ताकि संस्था का और भी अच्छा विकास हो जाए, सुंदर डेवलपमेंट हो जाए, बाहर के लोग आने लग जाएं और अधिक से अधिक धर्म प्राप्त करें, अधिक से अधिक इनके जीवन से प्रेरणा लें। इनका जीवन में आपकी भाषा में कहूँ तो ये चलता फिरता स्कूल है। स्कूल के अंदर तो बैठ करके क्लासरूम के अंदर में आपको शिक्षा मिलती है और इनके चलने फिरने से और बोलने से, वाणी और वर्तन के द्वारा भी अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती है। जो काम स्कूल में नहीं होता वो काम इनके
चलते फिरते होता है। महापुरुषों के जीवन में ये एक विशेषता होती है, उनके हर एक कार्य से प्रेरणा और शिक्षा मिलती है, उनका आदर्श ही एक अलग होता है। तो अनेक प्रकार से इनके जीवन का परिचय करें, थोड़ा बाहर से और थोड़ा अंदर से। अंदर में इनकी निर्मलता को देखें और बाहर में इनकी सादगी को देखें। बहुत वेशभूषा में बड़े ठाट बाट से रह सकते थे, बहुत सारे मठाधिपति रहते हैं, करोड़ों की मिलकत होती है, 50-50 लाख की गाड़ी में सवारी करते हैं, आगे पीछे चौकीदार होते हैं, बहुत ठाट बाट रहता है। मैंने बहुत सारे ऐसे संतों को देखा, लगभग 1,00,000 किलोमीटर चला, हिंदुस्तान का कोई कोना बाकी नहीं, सबसे परिचय किया, परंतु मन को समझा देता हूँ कि बेचारे कर्मवश, इनका दोष नहीं, इनके कर्म का दोष है। अपने मन को कभी मलिन नहीं बना, दृष्टि कभी मलिन नहीं होनी चाहिए, गुण ग्रहण की दृष्टि होनी चाहिए, किसमें क्या दोष। बहुत बड़ा कागज होता है, व्हाइट पेपर, उसके बीच में एक काला बिंदु अगर कर दिया जाए तो जगत का एक स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है, आपकी दृष्टि पहले कहाँ जाएगी? उस काले बिंदु। इतना बड़ा व्हाइट पेपर है, वो आपके नजर में नहीं आएगा, बस एक काला अगर उसमें बिंदु करके रखा, ध्यान वहीं जाएगा। तो हमारी दृष्टि भी आज ऐसी विकृत बनी हुई है कि हमारे जीवन में 1000 गुण हैं, वहां पर नजर नहीं जाएगा। जरा सा अगर कोई कर्मवश, अगर कोई दुर्गुण ऐसा नजर आ जाए, जीवन वहीं जाएगा। हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे साधु संतों को देखा, ठीक है, जिनमें से जो मिला हमने तो ग्रहण करने की भावना रखी, नेत्र को दूषित नहीं करना, कान की पवित्रता का ध्यान रखना, जिस कान से परमात्मा की वाणी हम श्रवण करते हों, वहाँ से पर परिवार या जगत की चर्चा या कोई निंदा या चुगली इस कान के अंदर से नहीं जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए। घर के सामने अगर कोई कचरा फेंकता है दरवाजे पर, बड़ा आपको खराब लगता है, अरुचिकर लगता है, ये क्या, मेरे घर के सामने कचरा फेंका, आवेश आ जाता। तो हमारी अज्ञानता कैसी कि आत्मा राम भाई का इतना बड़ा चलता फिरता मकान, और इसके दोनों दरवाजे इनसाइड आउटसाइड, और यदि बाजार में गए और कोई ऐसी चर्चा चलती हो, कोई गंदी बातें चलती है, दोनों दरवाजा खोल करके हम खड़े रहते डाले, पूरे गांव का कचरा इसमें चला जाता है। वहां ये ध्यान नहीं रहता, उपयोग नहीं रहता, परमात्मा वीतराग की वाणी इस कान से जाती है, यहाँ कोई अशुभ का प्रवेश नहीं होना चाहिए। पांचों इंद्रियों का यदि संयम आ जाए तब तो पंचमी गति प्राप्त कर। नेत्र से कोई विकार, प्रभु का दर्शन जिस नेत्र से हम करते हैं उसमें विकार ना, जिस कान से धर्म कथा का श्रवण करते हो वहां से जगत की चर्चा अंदर न चली जाए। अरे जीव जैसी जीव अमृत उत्पादन करती, अरिहंत का स्मरण करके रात दिन भक्ति के द्वारा, वहां गंदगी नहीं आनी चाहिए। आपकी जीव तो एक है, कभी आपने अपनी फिजिकल बॉडी को नहीं देखा, कुदरत की बड़ी सुंदर रचना है, ये अपूर्व देन। 2 आंख दी, 2 कान दिया, 2 नाक के छिद्र है, 2 हाथ, 2 पांव, पर जीव एक है। सब 2-2 सबका डिपार्टमेंट है, पर जीव के 2 काम, बोलने का और खाने का, और दोनों तरह से कर्म बंधन का कारण बनता है। अशुभ अभक्ष खाकर और असत्य बोलकर, यहाँ बड़ी सावधानी रखने की होती है, क्योंकि दोनों बड़े पावरफुल डिपार्टमेंट हैं। और इंद्रियों के लिए कोई सुरक्षा विशेष नहीं, कान के लिए नहीं, आंख में नहीं, नाक में नहीं, सब ओपन, स्टोमक तक चली जाती है। नाक का छिद्र जो है वो अंदर तक, कोई द्वार नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई चौकीदार नहीं। जीभ के लिए 32 गार्ड्स रखते हैं। जब से आपके अंदर बोलने में जगत की चालाकी आई, जहाँ तक निर्दोष थे वहाँ तक एक गार्ड्स भी नहीं आए, धीमे धीमे पूरे 32 आ गए। बीच में जीभ को रखा है। ये आप इसकी रचना को देखना, 25 दिन आप पावरलेस हो जाए, वृद्धावस्था आ जाए, कोई सुनने वाला नहीं, कितना भी बकवास करें, ये सब ट्रांसफर हो जाते हैं, कोई जरूरत ही नहीं। अब कोई खतरा नहीं। रसेंद्रिय पर भी विचार करना है। दांत ने एक बार आवेश में कह दिया जीभ से, गड़बड़ किया तो कुचल डालेंगे। जीभ ने सुन तो लिया और कहा, तुम मेरे पड़ोस में रहते हो,
पड़ोसी से वैर विरोध नहीं होता, पर तुमने धमकी दिया है तो मेरी भी बात सुन लो। कभी अगर ऐसी भूल कर दी तो बाजार में अगर ऊंधा सूंधा जरा सी भी बोल गई, बत्ती सी बाहर आ जाए। चुप है, दांत भी चुप है, इतनी खतरनाक। इसीलिए प्रभु ने कहा खान रश्मि, रसेंद्रिय पर अधिकार करना बहुत मुश्किल है। तो इंद्रियों पर यदि अधिकार आ जाए तब तो फिर चाहिए क्या, आत्मा पर अधिकार करने में प्रयास नहीं करना पड़ेगा, सहज में मिल जाएगी। इंद्रिय मरणे मरंति कम्माई, इंद्रियों के विकारों को अगर मार दिया जाए तो कर्म अपने आप मर जाएगा, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, आत्मा की उपलब्धि सहज में हो जाएगी। तो आध्यात्मिक साधना का यही तो लक्ष्य है कि इंद्रियों के विकारों का दमन किया जाए और आत्मा के प्रयास के अंदर, प्राप्ति के प्रयास में मैं सफल बनूं। तो मैं तो आपके जन्मदिन पर यही शुभेच्छा दे रहा हूं कि जल्दी से जल्दी अपने आत्मा पर अपना अधिकार प्राप्त करके वो परम पद को प्राप्त करने वाला परम भोक्ता बने, जिस परम पद के लिए सतत हमारा प्रयास चल रहा है। ये पुण्यात्मा जीव है ना, पूर्ण करे उस आशा में बैठा हूँ। बाकी बहुत अनुभव कर लिए, बहुत देख लिया, बहुत प्रवृत्ति भी की, प्रवृत्ति मर्यादा में की, परंतु फिर भी अब वो प्रवृत्ति में वश नहीं रहा, अब तो अंदर में प्रवृत्ति बन गई। बस ये इनसे मैं आशा रखता हूँ कि मेरे प्रति ऐसी शुभकामना दें। इस साधुओं के लिए निग्रंथ शब्द का प्रयोग किया है, मैं भी संसार के संपूर्ण ग्रंथि से मुक्त बनूं। बस यही मेरी मंगल कामना स्वामी जी से, मेरी अंतर की मंगल शुभ कामना। अपने आयुष्य को बहुत समाधि पूर्वक पूर्ण करें, जीवन की सफलता प्राप्त करके परंपरा में परम पद को प्राप्त करने वाले बने, यही मेरी अंतर से शुभेच्छा। ओम परम पूज्य आचार्य श्री भाई અહીંયા જ બેસજો, આ ઔપચારિકતા ઘરમાં ના હોય। ભક્તિ મૂકીને નહીં આવો। પૂજ્ય આચાર્યશ્રીની વિનંતીને માન આપીને આપણા પ્રમુખશ્રી તથા સાથે 2 થી 3 કાર્યકર્તાઓ જશે, બાકીના બધા આપણે અહીંયા બેસી રહીશું।